watch it, listen carefully what they said, and then I will ask some kind of questions. Okay, but before that, you just watch carefully. Okay, this is. Have you seen this, everyone? Hello. Yes, Yes, Have ma'am. you ma'am. seen? Yeah. So voice is clear or not? Clear enough. Yes. आवाज आ रहा है सबको? एक मिनट स्क्रीन Yes, थोड़ा ma'am. मसाज कर दो. हाँ, आवाज आ रहा है? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yeah. Intellectual property. As you sweep across our bench with a simulation, you'll see that IP is all around us. It's everywhere. Intellectual property is the input information. New products and technologies that are protected rise in the marketplace. IP rights offer not only protection, but they can also drive commercial success for small, medium, and large enterprises. Innovation moves fast. Ma'am, video is visible, but voice is a little bit low, ma'am. Biosciences, clean sources, and agri. Let's have a closer look. Non-obvious products, compositions, machines, processes, or improvements on any how a product works, what it does, how it does it, what it is made of. Ma'am, video का आवाज थोड़ा मैम आवाज बहुत कम आ रहा है. Demonstrate your commitment to protecting information. Let's keep moving. Trademarks protect a brand or a company's identity. Trademarks can be one or many words, sounds, shapes, or designs such as logos, brand names, and slogans. Registered trademarks can boost investor confidence, build your reputation, and become a revenue source through licensing or franchising. Moving on. There's of a product to the designs can be protected. voice is not. Hello, welcome to the postgraduate program in Artificial Intelligence and Machine Learning offered by the University of Texas at Austin in collaboration. Okay. So what you learn, Chaitanya. It's okay. Voice is not audible, but there is some. What we say? The definition and all. So what you learn from this audio, what it is actual intellectual property. Yes. Hello. Am I audible? Yes, ma'am. So what it is actually? Only one or two words I'm expecting. Okay. So
what we seen ki a number of intellectual properties, and we have seen whatever the things which you have doing innovation creative, so that is the property. So here are some symbols, you know, sir, copyright symbols are here. This is the copyright symbol, this is the trademark symbol. Patent, okay, what it is? Patent, patent means like that the article, okay, if you are doing something new, okay, that is the, and yesterday we have seen the seal, court judiciary seal, so that is मतलब अगर ऐसा stamp आपको, have you seen this ना, आप सब देख रहे हो, दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. दैट इज, सो ये जो दिख रहा है ना पेटेंट, राइट, यहाँ पे दिख रहा है पेटेंट, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है आप इसे टच नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये ऑलरेडी पेटेंट की हुई है ना। जिस दिन आपको ये पेटेंट साइन नहीं दिखेगा, दैट मीन्स यू हैव टू यूज इट प्रॉपरली, बट जब तक इसमें लिखा हुआ है पेटेंट, बुक में लिखा है कॉपीराइट, तब तक आप उसे यूज नहीं कर सकते। सो दिस इज द पेटेंट, okay? Now one second, we have seen the articles here, n number of the articles, the United States of America का ये जो article था regarding this, ये patented है। then जो लोग कुछ logos है, कुछ design है, कुछ stamps है ना, this is the patent, okay? तो यहाँ पे पेटेंट का सब दिया हुआ है कि राइट है, लॉ है, कॉन्टैक्ट है, एप्लीकेशन है, प्रॉपर्टी आता है, प्लांट आता है, ग्रांटेड परमिशन, दोस थिंग्स कम्स इन पेटेंट, ठीक है? आप ये जितना भी देख रहे हैं ना पेटेंट है ना, ये देखिए कल हमने देखा था कि ये साइन होना जरूरी है, पेटेंट या तो पेटेंटेड ऐसा लिखा होना चाहिए, है ना, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी जो भी चीज है, तो उसमें जब तक कोर्ट का रेड स्टैंप नहीं आएगा तब तक वो पेटेंट नहीं माना जाएगा। n number of logos, n number of things, डिजाइन है आपका, वो पेटेंट किया हुआ रहता है। जैसे लास्ट ईयर पेटेंट मिला हुआ है एक डिजाइन का, O&M का, बड़े सर मैम वगैरह और इनके टीम ने मिला के एक पेटेंट लिया हुआ है, सो उसमें भी लिखा हुआ है पेटेंट करके, ठीक है? सो दिस इज द थिंग ऑफ पेटेंट। ये देखिए ये सारे जो डिजाइन्स है ये पेटेंट में आते हैं, ठीक है? और ये जब आप डिजिटाइजेशन कर रहे हो, अभी डिजिटल है, तो अगर डिजिटली भी इसको वेरीफाई करना है तो ये वहां पे आता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपलोड हुआ है ना, ऑलरेडी। जैसे अभी आपने ये आपको पता होगा ना कि हमारा जो IT डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो अभी इतना ट्रांसपेरेंट हो गया है कि उसने क्या किया है अभी पता है आपके या आपके पेरेंट्स के, आप रिटर्न फाइल करते हो कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उसने अभी आपके 10 साल के रिटर्न का रिकॉर्ड रखा हुआ है, उससे भी ज्यादा, बट 10 इयर्स का रिकॉर्ड अभी उसके पास है। आगे चल के आप कुछ नहीं कर सकते हो, इतनी ट्रांसपेरेंसी आ गई है। गॉट इट? तो आप ही सोचिए, मतलब आप पहले जो फ्रॉड हो रहे थे, है ना, साइबर लॉ जब से आया है तो सिक्योरिटी भी बढ़ गई है। अभी भी वो हर चीज में, हर ट्रांजैक्शन में आपको OTP देता है कि OTP के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, और तुरंत आपको मैसेज भी आता है कि डोंट शेयर योर OTP टू अदर्स। गॉट इट? तो दैट इज द थिंग, मतलब साइबर लॉ के एडवांटेजेस बहुत सारे बढ़ गए, सिक्योरिटी बढ़ गई है। जितनी ज्यादा सिक्योरिटी होंगी हर चीज में, उतना काम ट्रांसपेरेंट होगा, उतने फ्रॉड कम होंगे, और अगर फ्रॉड होते भी है तो वो जल्दी हाईलाइट होंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास रिकॉर्ड है। और अभी थ्रू साइबर, थ्रू डिजिटाइजेशन हमें रिकॉर्ड फाइंड करना इजी हो गया है। हम इजीली फ्रॉड फाइंड करना इजी हो गया है, तो हम इजीली फ्रॉड को फाइंड कर सकते हैं। इंडस्ट्री डिजाइन, अगर इंडस्ट्री डिजाइन आप कुछ बनाते हैं तो इंडस्ट्री डिजाइन पे भी आपको पेटेंट लेना होता है। एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री, जैसे शू का डिजाइन बना लिया या किसी इंटीरियर का डिजाइन हो, एनी काइंड ऑफ, है ना, तो वो सारे क्या है, कॉपीराइट है। जैसे ये ट्रेडमार्क्स है ना, जो होता है, लोगोस होते हैं, ट्रेड का कोई डिजाइन है ना, शेयर्स के जैसे है, शिप कर, तो ये सारे जो ट्रेड से रिलेटेड जितने भी डिजाइन है, ये सारे ट्रेडमार्क के अंडर आते हैं, जो ऑलरेडी कॉपीराइट या उसका इनोवेशन
ऑलरेडी है। जैसे डिजाइन से, इंडस्ट्रियल डिजाइन है ना, इंडस्ट्री का डिजाइन है, उसका इंटीरियर डिजाइन है, एवरीथिंग एवरीथिंग इट्स कॉपीराइट। इवन फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी अगर कोई मेडिसिन बन जाता है नया, तो उसको भी इनोवेशन अगर हो जाता है नई मेडिसिन का, जैसे अभी हुआ था वैक्सीन का, वो भी क्या था, कॉपीराइट था, ताकि कोई बना ना सके। फिर हम लोग ढूंढ रहे थे कोई दे हमें, कोई दे, हम लोग, हमारे लोग भी बच सके। तो दैट इज द थिंग। फिर इसने इनोवेशन किया, फिर वहां से इनोवेशन हुआ, एन नंबर ऑफ थिंग्स हुई थी उस वक्त, अगर आपको याद हो तो। बट दिस इज द, फिर वो बेच रहे थे इनको कि नहीं हमने किया है, हमारा फॉर्मूला इसको दो उसको। हुआ ना ये बात कि नहीं हुई है? आपको तो अच्छी पता होंगी वो केस। यस और नो? यस मैम। यस। सो दिस इज द थिंग। तो ये है सारे एग्जाम्पल्स, ट्रेडमार्क से रिलेटेड, कॉपीराइट से रिलेटेड, पेटेंट से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल डिजाइन से रिलेटेड, ये सारे जितने भी है ये क्या है, कॉपी है, उस पे स्टैम्प लगे हुए हैं, जो हम उसे रीयूज नहीं कर सकते। रीड कर सकते हैं बट एज इट इज नहीं बना सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी बने हुए हैं और उसका सारा डिटेल उसमें है। वो अभी मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर आप किसी का आर्टिकल भी कॉपी पेस्ट करते हो, जैसे आपके प्रोजेक्ट, मैंने आपको बताया कि आपसे सीडी ली गई है, वो आपके प्रोजेक्ट को उनके सॉफ्टवेयर में डालेंगे यूनिवर्सिटी, और आपको सीधा चेक करके मार्क्स देंगे, अरे ये तो कॉपी पेस्ट है, दो कि नहीं दो। फिर वो प्रोजेक्ट पे कम मार्क्स देंगे, आपके ओरल पे, आपके डिसिप्लिन पे, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कम्युनिकेशन स्किल, ऐसे मिला के वो आपको, मतलब आउट ऑफ 50 20 22 और 25, मैक्सिमम 25 मार्क्स देंगे। और जो 25 मार्क आपको मिलने चाहिए थे प्रॉपर, किस पे, आपके प्रोजेक्ट पे जो आपने किया है। हाँ, अगर आपका ग्राफिकल कंक्लूजन अच्छा है, ठीक है, वो देखते हैं कि कॉपीराइट है, इसमें कॉपी तो किया है बंदे ने, बट इसमें नया क्या है। अभी वो जो आपका ग्राफ वाला वगैरह जो है, वो अगर उसमें नया दिखा तो उसमें वो 5-6 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा दे देगा। गॉट इट? सो दैट इज द थिंग। आपको लगता है कि नहीं कॉलेज वालों को ही चाहिए सारी चीजें, कॉलेज, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। हाँ? सारी कॉपी, सीडीज कॉपी होती है, वहां पे सॉफ्टवेयर में अपलोड होती है, और उसमें 1 मिनट में आपको प्लेगरिज्म का ये पता चल जाता है। ठीक है, आपको अभी मैं दिखाई देती हूँ, यहाँ पे है, ये सर्च करते हैं हम लोग कि जैसे ये मतलब सिंपल है फ्रॉड का। जैसे आपके पास आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है, आप यहाँ पे सिर्फ डालिए प्लेगरिज्म चेकर, ठीक है, ये वैलिड सॉफ्टवेयर नहीं है, बट इसमें भी वो दिखाता है। तो ये प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर है, अगर मैं इसे ओपन करती हूँ, ठीक है, ठीक है, ये आ गया प्लेगरिज्म चेकर। अभी इसमें अगर मैं कुछ भी मैटर, ठीक है, मिनट, मैं अभी यहाँ पे लेती हूँ, अगर मेरे पास कोई है मैटर तो आई विल जस्ट, चलिए कोई है, एक रिसर्च पेपर है, उसको डालते हैं हम लोग। वेट अ मिनट, ओपन हो रहा है फाइल मेरा। उसमें डालते हैं तो वो देखिए, जैसे आपको मतलब बिलीव होना चाहिए वो सारी चीजों पे, रियलिटी। क्या हो गया, वेट अ मिनट। तो मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स है जो आप नहीं कर सकते हो, वो सारे कॉपीराइट होते हैं, और उसका आप मटेरियल भी यूज करते हो। तो वो जो कंपनीज होती है जहाँ पे आप कॉपीराइट पेटेंट लेने जाते हैं, वो आपके चीज को चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, और वो सॉफ्टवेयर ने अगर आपको बता दिया कि आपने कहाँ से डाटा लिया है, कौन से बुक रेफर, सारी चीजें वो दिखा देता है। हाईलाइट रेड मार्क, ग्रीन मार्क, और जो रियल डाटा होता है उसको वो क्लियर बताता है कि नो, कुछ तो भी वेरिएशन है, मतलब ये डिफरेंट है। ठीक है, तो इसलिए बी अवेयर अबाउट दिस, डोंट डू कॉपी पेस्ट। करिए, लेकिन उसमें कुछ नया इनोवेटिव करिए, कुछ नए वर्ड यूज करिए। अगर आपने कुछ एनालिसिस किया है तो कंपैरिजन करिए, उसमें चार्ट डालिए, उसमें ग्राफ्स वगैरह डालेंगे, या फिर ये सारी चीजें उसमें आप करेंगे तो वो थोड़ा सा इनोवेटिव हो जाएगा,
है ना, थोड़ा सा, नॉट मतलब 50% तो भी इनोवेटिव होगा, ताकि 50% पे आपको 10-15 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे। तो कुछ तो भी यूनिक होनी चाहिए उस चीज में, तब जाके वो। अभी ये वाला एक है मेरा छोटा सा पैराग्राफ है, मैं लेती हूँ, को दिखाती हूँ उसमें डाल के। एक दिख रहा है आपको प्लेगरिज्म चेकर? यस। Yes, ma'am. हेलो। Yes, ma'am. ओके। वेट अ मिनट। It will take time, I don't know what, but so here we just wait a minute. Hmm. चेक प्लेगरिज्म, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। दिख रहा है ना सबको? Yes, ma'am. ये Yes, ma'am. तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या हो गया इसे? I don't know what happened, it will take time. So थोड़ी देर बाद देखते हैं, तब तक हम हमारा कल का पोर्शन कंप्लीट करते हैं, ठीक है? So yesterday we have seen some trademark and why it is required, how we protect it. Okay, so protections के लिए आपको उसे क्या करना है? पेटेंट करना है या फिर उसको आपको कॉपीराइट करना है। ओके, नाउ वेट अ मिनट। चूजिंग द करेक्ट मार्क, हाउ वी चूजिंग करेक्ट, ये हुआ था शायद हमारा ना, वेट अ मिनट, कहाँ तक हुआ था कल? एनीवन?
एनी आइडिया? प्रोटेक्शन ऑफ पेटेंट हो गया था ना, कुछ याद है? प्रोटेक्शन ऑफ पेटेंट चल रहा था मैम, प्रोटेक्शन ऑफ, पेटेंट चल रहा था। अच्छा चल रहा था, प्रोटेक्शन ऑफ पेटेंट। ओके, तो ये हो गया था है ना कि करेक्ट मार्क चूज करने के लिए हम जैसे डव टू यूजिंग द मार्क ऑफ क्रोज है ना, would frog restaurant be acceptable, would marksman and weekend check be, so n number of things जो हम देखते हैं ना जैसे किसी भी इस पे, तो वो क्या होती है टोटली मतलब कॉपीराइट होती है ना, उसमें मार्क, उसमें स्टैंप लगा हुआ होता है, सील का जैसे स्टैंप सील ऐसा लिखा होता है ना, दैट इज आपने प्रॉपर्टी के भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें भी रेड करके रजिस्ट्रार का स्टैंप लगा होता है, मतलब इट्स अ प्रोटेक्टेड राइट, नो वन इज उसमें कोई भी हार्मफुली वो ये नहीं कर सकता या फिर अपने नाम पे नहीं कर सकता, वो सारी चीजें होती है, वो ऑटोमेटिकली उसमें ये आपका जो ये होता है ना टैक्स, एनएमसी का टैक्स मतलब कॉर्पोरेशन का टैक्स होता है, वो भी पूरी तरह से क्या होता है डिजिटाइजेशन है, तो वो एक बार आपका नाम उसमें आ गया तो वो दूसरा जब तक उसको चेंज नहीं करेंगे, वो सारी प्रोसेस नहीं होंगी तब तक वो नहीं होगा, ठीक है, इट्स अ प्रॉपर्टी राइट, तो वो प्रॉपर्टी सबको पता है। नाउ द प्रोटेक्शन ऑफ पेटेंट, सो बेसिक आइडिया ऑफ ग्रांटिंग अ पेटेंट, the applicants apply it to the government for the right of patent and in return for the monopoly given he must disclose everything about the invention in the patent documents, मतलब everything he or she mention in this कि क्या किया था, इनोवेशन कैसे किया था, कहाँ गया था, कहाँ से ये सारी चीजें ली थी, कहाँ से उसको आइडिया आया और उसने कहाँ कहाँ वेरीफाई किया कि सेम थिंग इज अवेलेबल है मार्केट में, नहीं है, और नहीं है तो उसके लिए उसने क्या इनोवेशंस किए, वो सारे एग्जांपल्स उसको प्रूफ सबमिट करने पड़ते हैं, आफ्टर दैट वो पेटेंट मिलता है, और वो कितने दिन कितने साल के लिए होता है, 20 साल के लिए अपन कर सकते हैं, जितने साल के आपको 10 साल के लिए 20 साल तक आपका आइडिया कोई यूज नहीं करेगा विदाउट योर कंसेंट। सो पेटेंट फॉर इन्वेंशन, इन्वेंशन अगर करना है तो पेटेंट आप कर सकते हो, न्यू इन्वेंशन है एकदम टोटली न्यू है ना, न्यू कार्स आती है, मॉडल डिजाइन उसका एकदम डिफरेंट होता है, एकदम लुक भी उसका डिफरेंट होता है, सो दे ऑल आर पेटेंटेड, सो पेटेंट कैन बी अप्लाइड फॉर अ प्रोडक्ट और अ प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस अगर आपकी कंटिन्यूएशन में है रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल, तो वो एंड प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में या कोई भी डिजाइन आप बना रहे हो तो वो पेटेंट में आएगा राइट, सो द पेटेनेबल इन्वेंशन मस्ट बी न्यू, इन्वॉल्व्स एंड इन्वेंटिव स्टेप्स एंड इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल, ठीक है, वो ऑल इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल होती है, इन्वॉल्वमेंट होता है, एकदम टोटली न्यू होता है। सो प्रायोरिटी डेट फर्स्ट टू फाइल, मतलब जब आप उसे करोगे उसका डेट जो है, कब आपने उसको किया, कब आपको लगा वो करना चाहिए, उसको आपको मेंशन करना है राइट। वेट अ मिनट, तो मतलब पेटेंट का जो है वो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कब उसे बनाना है, कब उसको आपको शो करना है, मार्केट में दिखाना है, आपने कब उसका मतलब ओपन किया था, कब मार्केट में आया, उसको कब प्लान आउट किया, फिर उसमें क्या क्या प्रोसेस आपने ली है, कैसे कैसे उसे बनाया, सारा उसका बुकलेट जो है वो आपको वहां पे सबमिट, जैसे आप गूगल पे भी डालेंगे तो वो आपको इजीली मिल जाएगा, इजीली मतलब कैसे उसका कंटेंट है, क्या क्या है, कॉपीराइट ऑन डेटेड सो एंड सो, और वो जो बुकलेट है वो जहां से आप ये करोगे उनको भी वो डाटा आपको देना होगा ताकि वो आपका पेटेंट एक्सेप्ट कर सके, और वो फिर आपको डिजिटली उसमें डाल के आपको उसका सर्टिफिकेट देते हैं और पूरा एडवर्टाइज करते हैं कि ये पेटेंट हुआ है ये तारीख को,
और इन्होंने ये पेटेंट किया हुआ है, ठीक है। वेट अ मिनट। सो अभी हम वो प्लेगरिज्म का देखते हैं, ओपन हुआ है वो, एक सेकेंड। हो, मुझे आपको वो इसलिए दिखाना था कि वो आप जब भी आप नेक्स्ट टाइम कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो आप प्लीज उसे यूज करें, ताकि आपको पता चले कि रियल में ये सारी चीजें होती है कि नहीं, है ना। सो दिख रहा है आपको सबको? यस और नो? Yes, ma'am. तो अभी मैं यहाँ पे मैंने एक पेपर का डाटा लिया है, ठीक है। वो पेपर का डाटा मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करती हूँ। कॉपी किया मैंने यहाँ से, और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, ठीक है। ये एक रिसर्च पेपर है, दिखा है ना, मैंने पेस्ट कर किया, आपको दिखा? Yes, ma'am. अभी ये मैंने पेस्ट कर लिया, ठीक है। इतना ही था मेरे पास, अभी अपन इतना ही देखते हैं। अभी मैंने इसमें यहाँ पे जो क्लिक है चेक प्लेगरिज्म, मैंने जो डाटा दिया है मैं अभी उसको कमांड लूंगी कि मेरे इस डाटा का आप प्लेगरिज्म चेक करो, ठीक है। वो चेक कर रहा है अभी आपका प्लेगरिज्म, ठीक है। वो देखिए, आपको मतलब वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो आपको बता देगा कि कैसे आपने कहाँ कहाँ से, मतलब आप गूगल में भी कहीं से भी डाटा लेते हो ना, कहीं से भी, तो भी वो आपको दिखाएगा कि कहाँ कहाँ से अपना डाटा लिया है, वो हो रहा है। और इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है यूनिवर्सिटी के, एन नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स है प्लेगरिज्म चेकर्स के, जिसमें मतलब यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड भी है बहुत सारे। सो SPPS है और बहुत सारे है जो आपको प्लेगरिज्म चेक करके देते हैं, वो भी कर रहा है। और इसमें ना वर्डिंग देता है वो, टोटल कितने वर्ड्स है, 266 वर्ड है आउट ऑफ 100, ठीक है। टू चेक अप टू 25 वर्ड्स, अभी तक के 25,000 वर्ड्स उसने चेक किए हैं। और इसमें टोटल 1000, अगर आपको एक साथ नहीं लेगा ना वो, तो पैरा पैरा भी आप चेक कर सकते हैं। टोटल अगर वो नहीं करेगा तो वो पैरा पैरा वाइज भी चेक करके देता है आपके वर्ड्स, और ये सब बताता है वो कैसे चेक करेगा और किसमें क्या क्या दिखाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बता रहा है वो 1.68 ये है, 20 सेंटेंस है ना, वो सब दिखा रहा है, चेक कर रहा है वो। मतलब टाइम लगता है, वैसे से सॉफ्टवेयर सारे अवेलेबल है मार्केट में। यहाँ पे वो बहुत टाइम ले रहा है मेरे सिस्टम में, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट मतलब ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, और वो प्रोटेक्टेड सॉफ्टवेयर ही यूज करना होता है। इसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको वो थोड़ा कम ये दिखाएगा। लेकिन अगर आप जो लीगल सॉफ्टवेयर होता है ना, जो प्रोटेक्टेड सॉफ्टवेयर होता है, उसमें वो फटाक से को दिखा देता है। डोंट नो व्हाई इट विल टेक टू मच टाइम।
और यहाँ पे वो बताएगा आपको, है ना, कितना % यूनिक डेटा है। अभी तो 0% ही कर रहा है, वो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताएगा कि कितना यूनिक है और कितना प्लेगराइज है। ठीक है, अगर आपका पूरा यूनिक बताता है तो गुड, नो इशू। आपको ग्रामर चेक करना है, ग्रामर भी चेक करके देगा। ठीक है, और अगर आपका कुछ % आता है तो आपको उसे दिखाना है। ठीक है, इसे चलने दीजिए, देखते हैं बाद में। तब तक हम हमारा 3 मिनट्स ही हुए हैं, अभी चेक कर रहा है वो, तब तक हम हमारा सिलेबस देखते हैं। ठीक है, सो पेटेंट में इन्वेंशन न्यू होना चाहिए, और उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी क्या है कि आपको उसका जो डेट है वो क्या है मेंशन करना है, कि कौन से डेट को आपने वो इन्वेंशन किया था। यस, एनीवन वो आस्क एनी क्वेश्चन? किसकी आवाज आ रही है? ओके, रोल ऑफ पेटेंट। पेटेंट के कितने रोल है? इनोवेशंस है, एंटिसिपेटिंग द चेंजेस दैट इज कमिंग। ओके, कोडक। कोडक क्या है? एनीवन? कोडक क्या है? नो वन नो अबाउट कोडक? क्या था कोडक का प्रोडक्ट? कैमरा। पता है किसी को? Yes, ma'am. Camera roll. Yes. Yes, ma'am. Camera and camera roll. Yes. Very good. ये क्या है? पोलराइड। पोलराइड क्या है? वो भी प्रोडक्ट ही है, मैंने भी ये सुना नहीं है। आई एम जस्ट आस्किंग इफ यू वांट टू आस्क। एंड हेयर, ये भी एक प्रोडक्ट है, लेकिन हम कोडक के बारे में जानते हैं क्योंकि वो फेमस है। कैमरा रोल्स वो उसका एकदम डिफरेंट था, वो जब फर्स्ट टाइम इनोवेटिव। अभी तो एन नंबर ऑफ, अभी तो मोबाइल में भी अवेलेबल है सारी चीजें। गॉट इट? तो ये इनोवेशंस है जो क्या हुए थे, पेटेंट हुए थे। ठीक है, नाउ द वेरियस रूट्स फॉर एप्लीकेशन, व्हाट इज द नेशनल रूट, द पेरिस रूट, द पीसीटी रूट। ठीक है, तो ये बेस है, वो चेक होते हुए आते हैं, मतलब हर स्टेट में जाके उसको चेक किया जाता है कि कैसे वो बने हैं। किसी का कुछ लिया तो नहीं, किसी से कुछ फॉर्मूलाज तो नहीं लिया, वो सारी चीजें चेक होती है इसमें। सो प्रोटेक्शन फॉर इंडस्ट्रियल डिजाइन्स, इंडस्ट्रियल दैट आर न्यू और ओरिजिनल। जितनी भी इंडस्ट्रियल इनोवेशंस आ रहे हैं आईटी में, बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग में, वो सारे के सारे क्या है, पेटेंट है, क्योंकि न्यू है, ओरिजिन्स है। राइट? सो डिजाइन आर फीचर ऑफ शेप, उसका डिजाइन, उसका शेप, है ना, एन नंबर ऑफ थिंग्स क्या होती है, उसका पेटेंट होती है। कि वो चाहता ही नहीं कि ऐसी डिजाइन, सिर्फ मतलब उसका नाम होना चाहिए ना कि ये मेरा डिजाइन है। लोगो जो है ना, वो आपका ही होना चाहिए। सेम लोगो किसी ने कॉपी नहीं करना चाहिए, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। राइट? तो डिजाइन हो गया, उसका शेप हो गया, उसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, पेटेंट। और ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट में भी बहुत सारे पेटेंट्स आ गए अभी, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्नामेंट में तो अभी पहले तो गोल्ड ही चलता था, और उसके पहले भी तो लोहा था, है ना। सारे आयरन की चीजें लोग पहनते थे, उसके बाद गोल्ड, सिल्वर आया, और अभी तो एन नंबर ऑफ मेटल, क्या डायमंड, क्या एन नंबर ऑफ आ गए। अभी पता नहीं आगे चल के ये जो क्या हम बोलते हैं, वुड होता है ना, वुड, वो भी पहनने, वैसे तो पहनने लगे ही है लोग, लेकिन उसका भी आ गया है एकदम सिंपल सोबर। कहाँ देखा था मैंने वुड का? कहीं कहीं गई थी, आसाम गई थी या नेपाल, हाँ उस टाइम वहां पे देखा था। टोटल इतना हल्का था ना वो, और इतना सुंदर ब्यूटीफुल था। तो वो अभी ट्रेंड मैंने बहुत ही कम देखा है, लेकिन वो भी आना चालू हो गया है मार्केट में। तो मतलब क्रिएटिव, इनोवेटिव, जो कभी बनाया ही नहीं, जो कभी किसी ने सोचा ही नहीं। अगर आप कोई आर्टिस्ट हो तो बना के देखो वुड के वगैरह बैंगल्स, या फिर उसका शेप, वो एन नंबर ऑफ थिंग्स आप जो चाहे कर सकते हो, अगर आपके पास स्किल है तो, है ना। लेकिन उसे पेटेंट करना मत भूलिए, क्योंकि वो डिजाइन, वो थिंग, वो थॉट आपका है ना। तो ये सारी चीजें पेटेंट होती है। देन द डिजाइन मस्ट बी अप्लाइड टू एन आर्टिकल, है ना। उस डिजाइन को हम आर्टिकल लिखते हैं, उसके बारे में बताते हैं, लोगों के साथ शेयर करते हैं।
द डिजाइन मस्ट बी, उसको भी कॉपीराइट, और क्योंकि वो आर्टिकल आपने लिखा है, क्योंकि वो आपके थॉट है उस आर्टिकल से रिलेटेड, है ना। तो ऑब्वियसली अगर आप इतनी मेहनत से सोच रहे हो, इतनी मेहनत से उस पर लिख रहे हो, तो ऑब्वियसली वो कॉपीराइट होना चाहिए कि नहीं? कोर्स होना चाहिए। अगर हाँ, उसके बाद वो मार्केट में जब जाएगा तो वो लोग उसे क्या करेंगे, वो आइडियाज को आपको कॉल करेंगे, आपने कैसे बनाया, आपके इंटरव्यूज होंगे, आपके आइडियाज शेयर होंगी, तो उससे भी लोग पैसा कमाते हैं। देखिए मतलब कितनी वैल्यू है मार्केट में एक आइडिया, थॉट, स्किल, इनोवेशन की। आपने यूट्यूब पे डाल दिया, आपको 5,000 5 लाख लाइक्स मिल गए, तो ऐसे ही कमा लिया यूट्यूब वाला ने। तो गॉट इट। तो ऐसी चीजें करिए, बिकॉज यू ऑल आर यूनिक एंड यू ऑल आर क्रिएटिव। कोई भी चीज ऐसी जो आज फूड में भी बहुत सारे लोग कॉपीराइट, ऐसी चीज जो कहीं बनी ही नहीं है, या फिर कहीं बनी भी है तो उसको कुछ तो भी नया नाम दे दिया है ना डिश में नया। आजकल लोग कोरियन बहुत पसंद करते हैं, कोरियन फूड, कोरियन हेयर स्टाइल, कोरियन मेकअप बहुत ही ज्यादा फेमस है। स्पेशली लेडीज लोग तो बहुत ही प्रिफर करते हैं कोरिया कोरिया कोरिया, पता नहीं, बट है उसकी मतलब क्वालिटी और उसका जो टेस्ट है वो कुछ डिफरेंट है। मैंने टेस्ट नहीं किया है, बट फीडबैक मतलब लोगों से लिया है। आप में से किसने टेस्ट किया है कोरियन फूड? नहीं, नो मैम। नो मैम। नो मैम। इंडियन करते हैं वही बहुत है मैम, है ना। इट्स ओके, बट करिए, ट्राई करिए, मतलब एटलीस्ट बनाना। तो एक्चुअली कहने का मतलब यही है कि नाउअडेज एम्प्लॉयमेंट के इतने सारे वे आ गए हैं मार्केट में कि हम लोग उसे अप्लाई कर सकते हैं। कोरियन फूड का टेस्ट इंडियन फूड में कन्वर्ट करने के लिए होता रेसिपी सेम ही है ना, बट कुछ तो भी यूनिक कर लिया, तो उसको अगर आपने कॉपीराइट कर लिया तो हो गया आपको। तो जैसे वो चाय वाला था, एन नंबर ऑफ थिंग्स है, मतलब मार्केट में जो फेमस कर सकती है आपको, जो आपके अर्निंग का सोर्स बन सकती है ना। तो ये थिंग अच्छी है, बट कॉपी राइट नहीं होना चाहिए और सेम नहीं होना चाहिए, है ना। जो किसी ने किया है वही अगर आप करोगे तो उसके लिए आपको पनिशमेंट होगा। आप सेम थिंग नहीं कर सकते हो। क्या हो गया, इसे क्यों नहीं हो रहा है? चेक प्लेगरिज्म, अभी वो घूम ही रहा है, पता नहीं क्यों। करके देखिए आप, मतलब पता चलेगा आपको किसी का अगर जल्दी आ जाता है तो प्लेगरिज्म में, ठीक है। सो दिस इज द things. Then design are features of shape, configuration, pattern or ornament different होता है. The design must be applied to an article. The design must be applied by an industrial process. Industry में भी आप उसे use कर सकते हो. Appeal to the eye, है ना. और अगर कुछ हो गया तो आई एविडेंस के लिए अच्छा होता है ना आपको कि भाई अगर कुछ हो गया तो आपके पास आई एविडेंस होना चाहिए. देखिए सर, ये मेरा कॉपीराइट है, ये मेरा आर्टिकल है, मैंने ये साल में छापा था और सेम आर्टिकल देखो आज की डेट में भी है, मतलब ये बंदे ने ये आर्टिकल क्या किया है, कॉपीराइट. तो आप उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हो और उसको अपने फेवर में केस जीत सकते हो. सो कमर्शियलाइजेशन स्ट्रेटजीज, व्हाट इट इज, नॉवेल्टीज है, इफेक्ट ऑफ फेलियर टू रजिस्टर बिफोर मार्केटिंग, है ना. पहले मार्केटिंग के वक्त अगर आपको ये हो तो ये सारी कमर्शियलाइजेशन स्ट्रेटजीज है जो यूटिलाइज की गई रहती है. क्या क्या करते हैं वो सारे चीज आपको पता करनी होती है. नाउ प्रोटेक्शन फॉर जियोग्राफिकल इंडिकेशंस. जियोग्राफिकल इंडिकेशंस मींस वहां पे दिया होता है कि ये कहाँ पे इसका इन्वेंशन हुआ था. मिसाइल, उसका भी दिया रहता है, मतलब छोटा सा ये रहता है उसमें लोगो और उसमें उसके स्टेट का ये दिया रहता है और उसका ईयर दिया हुआ होता है ना. जैसे पुणे तो पूरा ही लिखते हैं, मुंबई को MUM लिखते हैं ना. ऐसे कुछ शॉर्टकट्स होते हैं ना, वो स्टेट का कोड लिखा हुआ था, कोडिंग हम इसे बोलते हैं, और उसमें उसका ईयर लिखा रहता है. तो जियोग्राफिकल एरिया मतलब कहाँ का है वो कोड से हमें पता चलता है. या फिर अगर हमने उसे
अभी तो डिजिटलाइजेशन है, अगर उसमें डाल के चेक किया तो उसमें वो पता चल जाता है ये कहाँ का इन्वेंशन है, यूके का है, जापान का है, फॉरेन का है, फ्रांस का है, कहाँ का है वो दिखता है. सो दैट इज अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन. सो मीनिंग एन इंडिकेशन विच आइडेंटिफाइज एनी गुड्स एज ओरिजिनेटिंग इन अ कंट्री और टेरिटरी. कहाँ का है उसका ओरिजिनेटिंग, कहाँ का है, कहाँ से वो आया है, और रीजन और लोकेलिटी वेयर अ गिवन क्वालिटी. Right? So the reputation or other characteristics of the goods is essentially attributable to their graphical origin. Right? हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा था, जो आपके कोकोनट्स होते हैं ना, कोकोनट वाटर है ना, एवरीवेयर हम लोग पुणे में मैंने देखा है कि जहाँ पे भी जाते हैं तो वो जैसा कोकोनट होता है वैसा ही वो उसे थोड़ा सा कट करके उसमें स्ट्रॉ डाल के हमको देते हैं, ग्रीन कोकोनट. राइट? हाल ही मैंने मतलब एक लास्ट वीक या दिस वीक में ही मैंने एक वीडियो देखा था, तो वो क्या कर रहे हैं ना, वो कोकोनट को अच्छी तरह से पूरा उसको व्हाइट कर रहे हैं. ओके, उसको शेप दे रहे हैं अलग अलग, जैसे बॉक्स का शेप या फिर पिरामिड का शेप. ठीक है, और फिर उसको स्ट्रॉ डाल के मतलब इतना एक्टिव क्रिएटिव बना रहे हैं उस चीज को ताकि लोग अट्रैक्ट होके आए शॉप में. और एक मैंने उसी में एक वीडियो देखा था कि वो पूरा जो कोकोनट है उसे वो पूरा उसको ये कर लेते हैं उसको अच्छी तरह से, और वो जो छोटा सा क्या बोलेंगे राउंड शेप में उसको बना के फिर उसको जो प्लास्टिक का अपना ये होता है ना डिब्बा स्टोर करके उसको फ्रीजर में रख रहे हैं. उसको मतलब स्टोर करके रखें ताकि वो सेफ रहे और कभी भी उसे यूटिलाइज करे. तो ए नंबर ऑफ थिंग्स आ गई है मार्केट में, हमें सिर्फ अपने आप को यूटिलाइज करके उसे क्या करना है, यूटिलाइज करके हमें उसे यूज करके उसे मार्केट में देना है. तो वो प्रोटेक्ट, उसने भी उसका कॉपीराइट लिया है. वो कहाँ का है, शायद केरला या कर्नाटक का है, उन लोगों ने उसे लिया है कंपनी ने. और एन नंबर ऑफ उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है, मतलब उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है. वो करना कट करना नोटो जो इतना मतलब इनोवेटिव लगा ना वो आइडिया, रियली बहुत अच्छा लगा मुझे वो आइडिया. मैं शेयर करूंगी, अगर मेरे पास वो वीडियो होगा तो मैं जरूर आपको दिखाऊंगी लेक्चर में. ओके, सो दैट मतलब वहां का है, वो उन्होंने फेमस कर दिया कि वो वहां का है. वहां से भले ही वो कोकोनट सारे ऑल ओवर इंडिया से उसके पास जाते होंगे, क्योंकि पूरे कर्नाटक में तो इतने करोड़ों कोकोनट आएंगे नहीं, है ना. वो जो मटेरियल सप्लाई कर रहा है वो ऑल ओवर इंडिया में कर रहा है वो, तो उसके पास इतने तो आएंगे ही नहीं. लेकिन उसने अपना नाम दे दिया, कहाँ का, केरला या फिर कर्नाटक. गॉट इट? तो अभी अपने आप को अगर प्रोटेक्शन करना है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस में भी, तो ऑब्वियसली आपको वहां का स्टेट का लोगो या कुछ तो दिखाना होगा, तभी तो वो प्रोटेक्ट मिलेगा. तभी तो लोगों को मतलब ऑल ओवर इंडिया में पता चलेगा कि ये का, जैसे अमूल का ब्रांड है ना, अमूल का आइसक्रीम है, ऑल ओवर इंडिया में बिकता है वो, और वो प्रोटेक्टेड है. क्यों? क्योंकि अमूल है. गॉट इट? एवरीवेयर, सभी जगह अमूल का मिलता है. आप उसे, और उसका जो टेस्ट है ना, आपने उसका कॉपी पेस्ट भी कर लिया ना, तो भी आप रियल अमूल का जो टेस्ट है ना, जो अमूल खाते हैं, अमूल का टेस्ट जिनको पता है वो बराबर पहचानते हैं कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है. राइट? बीच में हुआ था लोग ऐसे कॉपी, लेकिन उसका जो टेस्ट है ओरिजिनल वो आप नहीं दे सकते. केस भी हुआ था उस पर. ठीक है, सो दैट इज द थिंग. प्रोडक्ट मस्ट कम फ्रॉम अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल टेरिटरी. वहां से ही आना चाहिए, तभी तो उसका टेस्ट मिलेगा. सभी अब इतने सारे लोग मार्केट में हैं, तो हर एक का टेस्ट अलग अलग होता है, लेकिन अमूल का जो टेस्ट है वो डिफरेंट है. और वो एन नंबर ऑफ थिंग्स ऐसी है जो प्रोटेक्टेड है. जैसे और क्या बताऊं मैं आपको, जैसे नागपुर का संतरा बर्फी होता है ना, वो उसका एक अलग ही टेस्ट है. बाकी इसमें कॉपी पेस्ट में उसका टेस्ट नहीं आएगा. बहुत बीच में आया था कि उसमें टेस्ट ही नहीं है, संतरा ही नहीं है, उसमें कलर वगैरह डाल के वो बनाते थे. तो हाँ, किसी ने डुप्लीकेट बनाने की कोशिश की होगी तो वो नहीं आएगा ना. हेलो, यस मैम, अभी है ही नहीं अब वो टेस्ट. हाँ, अभी अभी वो टेस्ट ही नहीं है. यस, तो पता चलता ही है कि जो ओरिजिनल, अगर आप
में जाके खाएंगे तो ही आपको उसका टेस्ट मिलेगा। अगर आप Yes. दिल्ली में बैठ और 17 बर्फी खा रहे हो तो उसका टेस्ट नहीं मिलेगा आपको। रियल में लगेगा अरे इसमें तो संतरे का जो ये है टेस्ट वो है ही नहीं। गॉट इट? तो Yes. दैट इज द थिंग। तो वो पकड़ में आ जाता है और फिर उसका कंप्लेंट होता है, फिर उनको पनिशमेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट में अपना नाम करने के लिए या बिजनेस करने के लिए ऐसे चीजें कर रहे हैं, है ना। बट ओरिजिनलिटी इज ओरिजिनलिटी, इसलिए उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन दे। जैसे हल्दीराम ने भी एन नंबर ऑफ ब्रांचेस अभी जगह जगह। अब हल्दीराम नागपुर में इतना संतरा थोड़ी ना होता है कि वो ऑल ओवर में प्रोवाइड करेगा, तो कुछ तो मिक्सिंग करना ही होगा उसको, सो दैट इज द थिंग। तो ओरिजिनल अगर चीज खानी है आपको तो वहीं जाके खाना होगा, तब जाके आपको उसका टेस्ट मिलेगा। ठीक है। नाउ uses a name link to the particular geographical nature of the territory। मतलब आप जहां का भी है वहां पे उसका नाम, लोगो, मतलब वहां का पर्टिकुलर लिखिए। जैसे अभी मैंने बताया ना नागपुर का है। अब मुंबई में अगर वो संतरा बर्फी तो वहां पे अगर बन रही है तो एक्चुअल में वहां का डालिए आप, है नाम लेके। ऐसे कहीं का भी आप, मतलब नागपुर का, इसमें क्या हो रहा है, नागपुर का नाम खराब हो रहा है कि नागपुर का तो फेमस है और यहाँ पे भी वो बिक रहा है लेकिन उसका टेस्ट नहीं है तो खराब। जैसे आपका ये और कौन सा प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, कैडबरी है ना, पर्क है। अभी तो मुझे तो कोई भी चॉकलेट खाओ तो सेम ही लगता है ना। और हाँ, आइसक्रीम में भी वेराइटी है ना। जैसे हम लोग बटर स्कॉच खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, वो भी सारे कॉपीराइट फ्लेवर है। एक बार उसके कंटेंट, जो बनाने के कंटेंट है, तो अगर एक बार कॉपीराइट हो गए, उसका पेटेंट मिल गया या जो भी है, तो वो बार बार ये, हाँ टेस्ट आपको अलग अलग मिलेगा। जैसे आप घर का आइसक्रीम बना रहे हो, फ्लेवर वाइज बना रहे हो, तो डिफरेंट डिफरेंट आएगा। सभी लोग कॉपीराइट नहीं लेते, लेकिन जिसको ब्रांड बनना है, जिसको मार्केट में कुछ करना है, वही कॉपीराइट। जैसे हल्दीराम ने ले लिया है ना, अभी ये स्विगी, जोमेटो, इन लोगों ने भी ले लिया कि डिफरेंट है कुछ, लेकिन टेस्ट मुझे कहीं ये नहीं लगता है ऐसा कुछ भी ऐसा मिराकल वाला टेस्ट नहीं है। हाँ, अगर अभी तो फ्रूट में भी नहीं मिलता, एप्पल का जो जूस हम ले रहे हैं, है ना, या फिर मार्केट में जो आता है उसमें थोड़ा सा, मतलब प्योर एप्पल नहीं मिलता आपको। प्योर एप्पल जो हम पहले खाते थे वो वैसा टेस्ट नहीं मिलता है। मिला है क्या आज तक किसी को? फ्रूटी में भी मैंगो फ्रूटी, वो जो रियल आप रियल आम खाओगे, है ना, और जो तो उसमें डिफरेंस ही लगेगा आपको, है कि नहीं, कि सेम लगता है, सेम टेस्ट मिलता है। बट No, ब्रांड, ma'am. लोग क्या कर रहे हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ब्रांड, है ना, भले ही उसका। लेकिन ये इसमें प्रॉब्लम्स बहुत होती है। इसके अंदर आप अगर कोर्ट में जाएंगे ना तो एन नंबर ऑफ केसेस होती है ये पेटेंट कॉपीराइट फ्रॉड की, एन नंबर ऑफ। फिर वो लोग सेटलमेंट करते हैं कि यार जाने दे, तुझे भी कमाना है, मुझे भी कमाना है कुछ तो। फिर कंसेंट के तौर पे वो कुछ करके करते हैं ऐसा मिलके, ऐसा भी है। ऐसे भी केसेस, एन नंबर ऑफ केसेस है। अभी जो हम लोग टाटा बिरला का ब्रांड यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि उन लोगों से टक्कर लेना हमारी ये नहीं है, हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन छोटे मोटे इसमें केस में बहुत सारे लोग करते हैं, है ना। हम लोग देखते हैं कि स्ट्रीट पे जो फूड, वो कोई भी नाम से वो लोग बेचते हैं कि ये इसका है, और जो लोग होते हैं वो बड़े चाव से वो लोग खाते भी हैं। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है ना। उसे भी कमाना है इसलिए वो सारे करता है, बट इट्स ओके। बट रियल में ये सारी चीजें अगर आपको करना है तो आपको इसका कॉपीराइट या फिर उसका पेटेंट लेना जरूरी है। Then uses a name linked to particular geographical nature of the territory, ठीक है। Then क्या था वो बीच में एक स्ट्रीट के बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, जो मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी याद आएगा तो बताऊंगी। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गांव का नाम देके या शहर का नाम देके वो फूड को क्या करते हैं, सेल करते हैं। उनका कोई कॉपीराइट वगैरह नहीं होता, वो जस्ट अर्निंग सोर्स के लिए, पैसा कमाने के लिए वो सारी चीजें करते हैं। नाउ सच लबू सियांग फ्रॉम द सियांग बटिक, ये सारे वहां के, मतलब जापान के, कोरिया के सारे लोगोज है जो, या पेटेंट है जो उन्होंने लिया हुआ है टू स्टॉप अदर्स फ्रॉम यूजिंग, है ना।
तो इन लोगों ने भी बीच में ये किया था कि प्लीज डोंट यूज इट, लेकिन फिर भी हम लोग तो आपने जोक भी सुने होंगे ऐसे कि एन नंबर ऑफ कि हम लोग देख के वो सारी चीजें बना लेते हैं, है ना, यूज करते हैं, तो वहां पे लिखा भी होता है कि डोंट डू दिस, है ना। अगर आपने किसी ने यूज किया या ये किया तो आप पे एक्शन होगा, बट लोग नहीं ये होते हैं, अवेयर नहीं होते हैं और सेम थिंग बार बार करते हैं। तो एग्जाम्पल्स ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशंस के क्या है? स्विस मेड, आप चेक करो क्या है। स्विस चॉकलेट, स्विस के है सारे। सर्वा पीपर है, सॉल्टेड एग है, स्वीट टर्माइंड है ना। ये सारे एग्जाम्पल्स है जो फूड में बहुत मिक्सिंग होता है, तो फूड में ये बहुत सारा, जैसे कश्मीर की मिर्ची, सही में कश्मीर की होती है क्या? वो कश्मीर का तीखा लाल, ऐसा कुछ होता है क्या, है ना, वो लाल मिर्च में वगैरह। तो एन नंबर ऑफ थिंग है। अभी तो हर चीज में, ऑयल में इतने सारे ब्रांड आ गए हैं, सबने अपने अपने बना के रखे हैं। सोप में इतने सारे आ गए हैं, मेकअप में इतने सारे आ गए, मैट की लिपस्टिक्स एंड एन नंबर ऑफ थिंग्स। वॉच, पहले टाइटन के सिवा कोई पहनता नहीं था, है ना, अभी तो एन नंबर ऑफ आ गए हैं मार्केट में। तो इतने सारे मतलब उन्होंने चैनल ओपन कर दिए हैं कि ये भी है, लेकिन कॉपी मतलब चलता घड़ी है ना, वो वॉच ही है, उसमें उतने ही नंबर्स, उतने ही उसके ये है, दो ही उसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं चलने, तो एवरीथिंग इज सेम। मतलब थोड़ा बहुत होता है, बट फिर भी उसे वो लोग क्या करते हैं, ये तो फूड में भी है ये सारी चीजें जिसका उसने, जैसे इसमें देते हैं ना, कश्मीर का तीखा लाल मैंने बोला, ठीक है। और ये स्विस चॉकलेट के नाम से भी हमारे यहाँ पे बेचे जा रहे थे बीच में। ये कहाँ का है? तो ये यहाँ इस देश का है, तो उसमें वो लिखा रहता है, राइट। जैसे पतंजलि का घी, है ना, और क्या क्या आता है। तो ये सारे ब्रांड है जो मार्केट में मिल रहे हैं, उसका भी पेटेंट और ये सब किया है। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस वो कहाँ का है, द्वारका का अगर कुछ है तो वो द्वारका का पेड़ा या कुछ है तो वो, ऐसा सारी चीजें उसमें पेटेंट की हुई आपको मिलेगी। तो ये नंबर ऑफ थिंग्स है मार्केट में आई हुई। सो प्रोटेक्शन अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट बेस्ड ऑन कॉमन लॉ, ठीक है। देयर इज नो लेजिस्लेशन पास बाय पार्लियामेंट, उसने इसमें ऐसा कोई भी लॉ या पार्लियामेंट ने ऐसा कोई भी रूल इशू नहीं किया है या बनाया नहीं है, या कोई भी रूल ऐसा पास नहीं किया है। एनफोर्स बाय कोर्ट्स डिसीजंस, कोर्ट डिसीजन लेगा कि यस, ये मतलब उन्होंने कोर्ट को दे दिया, अगर इस तरह की केसेस आपके पास आती है तो यू शुड टेक अ डिसीजन एंड रिजॉल्व द केस। स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब एप्लीकेशंस मस्ट है, जिसको भी केस डालना है उसको क्या करना है, एप्लीकेशंस देना जरूरी है। वेट अ मिनट, विल चेक इट again, are plagiarism sort out or not? नहीं, ये आप चेक करिए, या फिर शायद मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए वो नहीं ले रहा है, ठीक है। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यही स्टॉप करती हूँ। कल हम थोड़ा सा पासिंग ऑफ देखेंगे व्हाट इट इज, और अभी आपका नेक्स्ट लेक्चर जो आनंद सर का है वो नहीं होगा, ठीक है। सो आप अपना वाइवा का प्रिपरेशन करिए सभी लोग अच्छे से, कल आपका वाइवा है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिन लोगों का भी है, और अच्छे से प्रिपेयर करिए क्योंकि मार्क्स अच्छे मिलने चाहिए, इफ कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, और टाइम पे आइए, ठीक है। यू नो व्हाट इज द रूल्स। प्लीज एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना है Ma'am, तो I have one question to ask. हम्म, Omkar is sir, ma'am. Ma'am, if I have one YouTube channel related to finance, and on that channel, we have to create any case study on any finance topic. For that, if I have refer any article or any news, so it is mandatory to put these links in the description of YouTube video of mine. ओंकार आपकी आवाज नहीं आई बीच में, मैंने सुना ही नहीं, प्लीज रिपीट अगेन। Ma'am, if I have any YouTube channel related to finance, on that channel, if I want to create one case study related to any finance related topic, so for that purpose, if I
preferred any article or any news related to finance. So it is Hmm. mandatory to put these links in my description for the YouTube video. Yes, yes, it is mandatory. पता कैसे And चलेगा ma'am, ना? मैम अगर मुझे वो वीडियो उसको भी पेटेंट करना पड़ता है क्या मैम? क्या वो YouTube के थ्रू नहीं पॉलिसी में नहीं आ नहीं, जाता है वो पेटेंट ले, उसके लिए पेटेंट नहीं लेना है। अगर इनोवेशन है, नया है, आपको चेक करना होगा कि इसके पहले हुआ है वो, है ना? नया तो कुछ नहीं होगा ना उसमें, ओंकार, कि यस मैम? है कि नहीं? आपने क्या किया, कहीं तो भी पढ़ा है वो और उसको देख के आपने बनाया है, तो वो नई चीज है ही नहीं। गॉट इट? यूट्यूब पे, यूट्यूब को डालने के लिए आपको पेटेंट लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ब्रांड करना है उसको, वो बहुत चेक होता है और वो पेटेंट इतने जल्दी नहीं मिलता, सालों लग जाते हैं, एक एक दो दो साल लग जाते हैं वो पेटेंट मिलने के लिए, क्योंकि वो वेरीफाई होता है। यूट्यूब पे डालने के लिए आप कोई भी चीज, कोई भी लेक्चर आप प्रिपेयर करो, अच्छा कंटेंट उसमें डालो, फिर आप उसे यूट्यूब पे डाल सकते हो। उसको आपको पेटेंट या कॉपीराइट लेने की जरूरत नहीं है। अगर नया रिसर्च है, कुछ नया, तो ऑटोमेटिक आएगा। कोई आपको बता के पेटेंट या कोई आपको बता के रिसर्च नहीं लिखेगा, क्योंकि अगर आपने एक बार अपना थॉट शेयर कर दिया तो आपके पीछे भी 10 लोग हैं वो उस चीज को लेने के लिए बैठे हैं, है कि नहीं? ये डिफरेंट यस थिंग, मैम. डिफरेंट थिंग। सो मैम आई हैव अनदर क्वेश्चन. अगर मैंने मैम वो YouTube वीडियो बनाया और उसके मतलब उसके लिए मैंने कुछ टॉपिक्स मैंने प्रेफर किए. सो बेसिकली उन टॉपिक्स को मैंने अगर वीडियो अगर बनाया तो उसके ऊपर कोई पेटेंट कोई लीगल एक्शन तो नहीं होगा ना, क्योंकि मैंने सिर्फ कोई आर्टिकल पढ़ के मैंने कुछ बनाया है मैम. नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो डिपेंड करेगा कितने लाइक्स आते हैं, कितने ये है, ऐसे आपको कमेंट आएंगे, इसमें आपको क्योंकि मैम कमेंट आएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि किसी टॉपिक का एक यूट्यूब वीडियो में मतलब पोस्ट करूँ. मैं अभी चैनल बना रहा हूँ मैम मेरा, तो इसलिए आपसे पूछा मैंने. चैनल अगर बना, क्योंकि चैनल को अगर आपको ये करना है तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी होगी, है ना, अगर नया है तो। बाकी अगर आपका खुद का है तो वो आप कर सकते हैं। अभी तो कितने सारे हैं, एन नंबर ऑफ है, बहुत सारे मैम लोग लाइक हैं वो पे आपके। वो कैसा, यूट्यूब वालों का कैसा है कि आप कुछ भी डालो, लेकिन वो डिपेंड करता है आपको कितने लाइक्स मिलते हैं, है ना? अगर आपका आपने देखा है कि अगर आप कोई भी थॉट, कोई भी किसी का भी थॉट अगर आप शेयर करते हो, तो अभी वो कंपल्शन हो गया है कि वो थॉट किसका है वो लिखना जरूरी है। अगर आप उसके पीछे लिखते नहीं हो वो थॉट किसका है, और सामने वाले ने, कोई भी ने अगर एक्शन ले ली, तो आप गए काम से। ठीक है, तो उसमें सो ये आपको मैम. मेंशन, जैसे आप फाइनेंस का कुछ भी लिख रहे हो या बता रहे हो, तो आपको उसमें मेंशन करना है कि आप किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हो, किसने लिखा हो। तो आपको लिखना होगा एज पर दिस ऑथर सेड, राइट? ओके आई मैम. रीड द आर्टिकल ऑफ दिस ऑथर एंड एज पर माई स्टडी दिस इज द कंटेंट एंड ऑल। आपको पता है कौन बनेगा करोड़पति शो अगर आप देखते होंगे, तो आपको पता है कि एक बार अमिताभ बच्चन जी ने एक थॉट कहा था, ठीक है, लेकिन वो थॉट में उन्होंने वो किसका है वो बताया नहीं था। तो जो उनके फैंस थे उसमें से ही एक ने उनके अगेंस्ट में ये बोल दिया था कि आपने ये थॉट्स बोला, लेकिन ये किसने लिखा ये नहीं बोला, है ना? तो ऐसे लोग भी है। मतलब आप ये मत समझिए कि रीडर्स फूल है, रीडर्स भी होशियार है, पढ़ने वाला सुनने वाला होशियार है। अगर वो कंप्लेंट करता है मतलब वैलिड है, और आपने सही में, तो उसके लिए उसने उनके रिटेक देखे कि यस सही में किया, क्योंकि अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर यार, उससे ऐसी गलती हो गई। तो फिर उसको उसने बोला कि आपको अपोलोजाइज करना होगा सर, बिकॉज यू डिड मिस्टेक। एंड नेक्स्ट डे उन्होंने लिखा था कि अपोलोजाइज फॉर दैट, yesterday I have did some kind of things, so use this thing and this is the whatever I am saying, this thought and saying that person and all, ऐसा उसने लिख के दिया था उसके ट्विटर पे, अगर आप ट्विटर देखते हो तो। गॉट इट? इवन ये अपना शशि थरूर बहुत नामी है, वो भी अगर कुछ बोलता है ना, तो वो भी उनका नाम लेता है कि ये उन्होंने कहा हुआ है, बिकॉज कॉपीराइट है, बिकॉज ऑलरेडी हैपेंड, कोई नया नहीं है वो। गॉट इट? ओके मैम. सो Yes. मैम मैं एक्सिस बैंक का जो म्यूचुअल फंड है वो अभी लोग खरीदना कम कर रहे हैं, इसके ऊपर एक टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा था. सो इसलिए मैम आपसे मैं पूछने वाला था कि कुछ टिप्स और
होगी तो आपके पास मुझे देंगे क्या मैम? मतलब कुछ ऐसे आइडियाज वगैरह होंगे तो मैं उसके ऊपर रिसर्च कर पाऊँ। हाँ, आप कर सकते हो ना, आप उसे बनाइए उस टॉपिक को। अगर देखिए, अगर आपका आर्टिकल वाकई में आपने वो आर्टिकल लिखा और जब आप पब्लिश करते हो ना जर्नल में, तो जर्नल, जिस भी जर्नल में आप पब्लिश के लिए डालते हो, तो उसमें प्लेगरिज्म चेक करो। अगर आपका आर्टिकल न्यू है तो वो उनके सॉफ्टवेयर में दिखाता है कि यूनिक है। यूनिक है तो आपको कॉल करेंगे और आपको बोलेंगे कि सर आपका आर्टिकल यूनिक है, तो हम इस आर्टिकल को कॉपीराइट का, क्या आप कॉपीराइट करना चाहेंगे? आपने बोला यस, तो वो कॉपीराइट हो जाएगा और सारे इसमें दिखेगा, मतलब सारे जर्नल्स में वो दिखेगा कि यस, ये आर्टिकल पे या एक्सिस बैंक का जो भी आर्टिकल आपने लिखा है, इसका ऑथर जो है वो ओंकार है और इसने ऑलरेडी इस पे लिखा है, सो नो वन हैव राइट टू मेक दिस आर्टिकल अगेन एंड अगेन। ठीक है, वो टाइटल मैम। भी अगर मैं इसमें डालूंगी तो मुझे बार बार ओंकार का ही नाम दिखेगा कि ये ओंकार ने लिखा है, ओंकार ने लिखा है, ओंकार ने लिखा है। आपने अपने अपने प्रोजेक्ट में लिटरेचर रिव्यू लिखा है ना? वो लिटरेचर रिव्यू आप अपने इसमें डालिए, गूगल में देखिए कितने सारे रिसर्च पेपर आ जाते हैं उससे रिगार्डिंग। क्यों आते हैं? बिकॉज वो सारे कॉपीराइट है, इसलिए। समझ में आया क्या? सो दैट इज द यस मैम। थिंग। न्यू इनोवेटिव ऐसी चीज होती है जो एक ही बार दिखेंगी, बार बार नहीं दिखेंगी आपको। या तो फिर बोलेंगे कि ये हुआ ही नहीं है, मतलब नहीं हुआ है तो उसको बनाओ फिर। समझ में आया? यस मैम। यस। और कुछ पूछना है? यस। किसी को और कुछ पूछना है? ओके देन, सी यू टुमारो। अभी शायद आनंद सर का लेक्चर नहीं है, सो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर टुमारो वाइवा। हैव अ गुड डे। थैंक यू मैम।